Varun Rover, welcome to CNN News 18. जी शुक्रिया, बहुत बहुत खुशी हो रही है यहाँ पे पहुंचकर और बात करने का मौका मिल रहा है आपसे. Thank you. Varun, congratulations to you, to all lyricists and music composers, and the team at IPRS, that's the Indian Performing Rights Society. As a couple of weeks ago, in a landmark judgment, Bombay High Court has ruled that private FM radio stations must pay royalties for broadcasting music to the creators of music, which include the writers and the composers. Please tell us more about the judgment and how it paved way for the future generation. So it is definitely a landmark judgment. The case was being fought for 10 years in the Bombay High Court, and right after 2012, the Parliament did the amendment to the Copyright Act. Uske baad se, it should have been a one-step process. Right after that, the FM channels should have automatically started giving us the royalties for the music we create. But they put their foot down and said कि नहीं, जब तक हम केस मतलब कोर्ट में जलील नहीं होंगे तब तक हम रॉयल्टीज नहीं देंगे. तो वो उसमें 10 साल लग गए हमको उस वर्डिक्ट को पाने में फाइनली. बट थैंक्स टू द टीम एट IPRS, थैंक्स टू जावेद अख्तर साहब, who constantly who kept at it, who to great personal harm in that sense, that professional relationships he had to his professional relationships with a lot of music companies, with a lot of FM channels has suffered, and he still did not at all, kind of change his mind or go easy, and he stood there, and the entire team at IPRS. It is a major thing because क्या है ना कि हम लोग India में there is a cultural, so there is a battle which is, I would say there is a cultural aspect to it where we don't respect writers as much as we respect the actors who are on the screen. ठीक है, तो वो एक cultural aspect है, हमेशा से रहा है. And the second is the legal aspect, that how this cultural mindset that writers are not important or someone who is not seen on the screen is not equally important. ये जो है ये फिर legally ऐसे transfer होता है कि writers who create something, they don't get their due sometimes in terms of credit. हमको credit के लिए लड़ाई लड़नी पड़ी. We had to do this campaign called credit दे दो यार. उसके बाद से ठीक है, हमको credit मिलना शुरू हुआ है काफी जगह. जैसे कि YouTube में अगर आप देखेंगे गाना आता है तो पहले सिर्फ फिल्म का नाम होता था, जो टाइटल में गाने का जो मेन हेडर होता है उसमें फिल्म का नाम और कंपोजर का नाम और फिल्म के एक्टर्स का नाम. एक्टर दिख रहे हैं फिर भी उसमें वो नाम लिखा रहेगा कि ये एक्टर हैं इस गाने में, बिकॉज दैट्स हाउ द सर्च इंजन वर्क्स कि ओके यू मे लुक फॉर अ रणबीर कपूर सॉन्ग, तो वो आपको जल्दी मिल जाएगा. बट अगर कोई ढूंढना चाहे स्वानंद किरकिरे के गाने कि मैं वही सुनूंगा आज यूट्यूब पे या जहां भी जिस भी ऐप पे आप म्यूजिक ऐप पे सुन रहे हैं, दे शुड have had that functionality already from the beginning, but now they are, after we raised a voice, उसके बाद वो हुआ. Similarly, royalties are moral right. ये ठीक है, हम copyright transfer होता है legally. जब हम गाना लिखते हैं, we work for hire. So there is a contract we sign where we transfer the copyright to whoever is paying for it, it's the producer or the music company. But the moral right remains with us. That is the amendment to the Copyright Act. That is the right thing to do. आप Copyright Act छोड़ दें, ठीक है, law वगैरह छोड़ दें. एक इंसानी जो मॉरलिटी होती है उसके हिसाब से जिसने गाना बनाया है, जिसने लिखा है, जिसने सबसे पहले ये अल्फाज सोचे हैं, जिसने भी कि चलिए वो ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है. अगर आप कहें कि ये साहिर साहब ने लिख के लेकिन बेच दिया तो साहिर साहब का इससे कुछ लेना देना नहीं है, दैट इज सो रॉन्ग. तो ये कल्चरल माइंडसेट और उसको लीगली कैसे जुड़ता है, ये कम से कम इस जजमेंट में बहुत क्लियरली बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है कि ये राइटर का inalienable right है to ask for royalties, to get royalties, and radio channels have to comply with that. So I think that's a big step forward. So then what is the percentage that writers and composers get as a royalty for a song, and for how many years? Is it perpetual or? It is in perpetuity. So for writers or lyricists or composers who are no more alive, so they can transfer to whoever is, so unki family ko milta hai. So there is always, it is in perpetuity. How much the royalty is, uska bahut sare alag-alag jagahon ke alag-alag numbers hain.
जैसे अगर वो रिंगटोन है तो उसका कोई अलग परसेंटेज है। आई थिंक परसेंटेज कितना होता है गाने का जब when the music company gets the royalty or the IPRS collections, what percentage writer gets? Is it 50%, 25%? नो सो या इट इज 25%, बट वो अगेन वो कॉस्ट कितना है वो अलग अलग जगह का अलग अलग। जैसे कहीं से रेडियो पे अगर गाना, मतलब रेडियो पे अब मान लें अगर हम कि गाना बजता है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि 10 रुपया मिलता है उससे रॉयल्टी का म्यूजिक कंपनी को, तो 5 रुपया वो रखेंगे, बाकी 5 रुपए में 2.5 रुपया और 2.5 रुपया कंपोजर और लिरिसिस्ट को जाएगा। तो ये इस तरह का एक सिस्टम है जो कि हर जगह पे, मतलब एफएम चैनल का अलग रेट है, रिंगटोन का अलग रेट है, लाइव शोज का अलग रेट है, टीवी में किसी एड में बज रहा है पुराना गाना जिसको इस्तेमाल कर रहे हैं, या अवार्ड शो में बज रहा है, या इंडियन आइडल जैसे किसी म्यूजिक रियलिटी शो में किसी ने गाया है। तो सबके अलग अलग फी स्ट्रक्चर है, और एफएम का भी इस तरह से फी स्ट्रक्चर होगा जो कि है, मतलब जो अब लागू होगा होपफुली फ्रॉम नाउ आफ्टर द जजमेंट। Varun, today it looks like nobody cares about the melody or lyrics. Filmmakers are only interested in hook lines and hook steps. Back in the day, a lot of importance was given to lyrics. Do you think today lyrics and word don't get that much importance? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है। मुझे लगता है अभी भी आप देखें, अगर पिछले साल के भी जो टॉप एल्बम्स रहे हैं उसमें आप ब्रह्मास्त्र है, या कला का एल्बम जिसको बहुत प्यार मिला, या मोनिका ओ माय डार्लिंग का एल्बम जिसको बहुत प्यार मिला, तो ये जो हर साल फिर भी, मतलब ठीक है, अभी ये आपका कहना सही है कि थोड़ा सा नॉइज बढ़ गया है, क्योंकि थोड़ा सा एक जनरेशनल शिफ्ट है जिसमें कि म्यूजिक पे ज्यादा जोर है और शब्दों पे कम है। तो उतना इंसेंटिव नहीं रह गया लोगों के पास कि अच्छे लिरिक्स हों जिसमें एक अच्छी पोएट्री हो। लेकिन उसके बावजूद जो अभी भी मेरे ख्याल से जो साल के टॉप 10 एल्बम आते हैं और साल की जो अच्छी फिल्में आती हैं, जो भी बड़ी फिल्में हों, जैसे वो आप भंसाली साहब की गंगूबाई ले लें, या आप ब्रह्मास्त्र ले लें, जो भी बड़ी फिल्में या जो अब आने वाली हैं इस साल, या पठान ले लें, या अभी करण जौहर की अगली फिल्म आएगी, उसमें एक चीज है जो बाकी एल्बम्स में नहीं हो रही है, वो ये है कि दे आर सिंगल कंपोजर सिंगल लिरिसिस्ट एल्बम्स, एंड दैट इज समथिंग विच वाज द ट्रेडिशन, जिसमें कि आपको स्पेस मिलता है, स्कोप मिलता है टू एक्सप्लोर पोएट्री, टू एक्सप्लोर द म्यूजिक, एंड नॉट जस्ट डू क्लिक बेट काइंड ऑफ रीमिक्सेस या रीवर्किंग ऑफ ओल्ड सॉन्ग्स। इसमें ओरिजिनल गाने होते हैं। और अभी भी जो सबसे ज्यादा डाउनलोड्स हैं आप देख लें तो ब्रह्मास्त्र का है पिछले साल में, या गंगूबाई काठियावाड़ी का है। अगेन दे आर सिंगल कंपोजर एल्बम्स। ब्रह्मास्त्र तो सिंगल लिरिसिस्ट है, गंगूबाई में देयर वर मल्टीपल लिरिसिस्ट्स, बट स्टिल दे हैड द ओल्ड वर्ल्ड अप्रोच टू म्यूजिक, जिसमें कि एकदम फिल्म के लिए गाने बने हैं, कोई रिमिक्स नहीं है, कोई ऐसा कोई गाना नहीं है कि अच्छा पुराना गाना हमने इस्तेमाल किया, एंड दे स्टिल वर्क। सो द मार्केट इज नाउ ओवर क्राउडेड। उस वजह से ये हमारा ध्यान भटक सकता है कि हम सोचें कि अच्छा अब लिरिक्स वाले गाने आ ही नहीं रहे, या अच्छे गाने आ नहीं रहे। गाने आ रहे हैं, जस्ट दैट नॉइज बहुत सारा है, यू हैव टू फाइंड फॉर देम कि ये वाले जो हैं ये हमारे अभी भी अवार्ड्स भी उनको मिल रहे हैं, नंबर्स भी उनको मिल रहे हैं। म्यूजिक कंपनीज रियली वांट, लाइक एवरी म्यूजिक कंपनी वुड जंप एट द आइडिया ऑफ प्रीतम plus Amitabh Bhattacharya or A.R. Rahman plus Irshad Kamil, kind of a combination that will still work way better than any remix or any multi-composer album कि अच्छा एक गाना इसने किया, एक गाना remix उसने किया. That is the trend which some people are going with, but I don't think that is a sustainable trend, and I don't think that is even a profitable trend actually. You are one of the few lyricists in the country today who writes in Hindi. मतलब आपकी ज्यादा गानों में प्योर हिंदी होती है. I don't remember the last time we heard the word toe or man kasturi re. Do you also sometimes ask by filmmakers to tone down the Hindi? हाँ, ये सुनने को मिला है कभी कभी कि ये थोड़ी ज्यादा हिंदी है, ये शब्द हमको समझ नहीं आ रहा है। एक गाने में एक बार मैंने मकान शब्द यूज किया था, वो भी किसी ने बोल दिया, कंपोजर थे जो भी, उन्होंने कहा कि यार मकान तो बहुत ही ऐसा पुराना वर्ड है, मकान कौन बोलता है। तो वो सही बात है कि आजकल बॉम्बे में जो रहते हैं, जो बॉम्बे में पले बड़े हैं, उनके लिए मकान मतलब फ्लैट होता है। दे अंडरस्टैंड फ्लैट और अपार्टमेंट, दे डोंट इवन नो द कॉन्सेप्ट ऑफ अ मकान, अपना घर होगा वैसा।
तो वो थोड़ा सा था, बट हाँ ऐसा कभी कभी हुआ है. बट आई एम ब्लेस्ड टू वर्क विद लॉट्स ऑफ कंपोजर्स एंड डायरेक्टर्स हु आर वेरी वेरी ओपन टू द आइडिया ऑफ कि आप जैसी हमारी शुद्ध हिंदी जो उत्तर भारत में बोली जाती है वैसी आप इस्तेमाल करें. अनुराग कश्यप से लेकर सबसे पहले उनके साथ काम किया उस समय स्नेहा खानवलकर कंपोजर थी. उन्होंने पूरा मतलब एकदम पूरा मुझे खुला आसमान मिला कि अच्छा आप जो भाषा बोलना चाहें. उसमें वो मनिया भी है और उसमें छीछा लेदर भी है और उसमें काला रे भी है और तो सारा या तार बिजली से पतले हमारे पिया. उसमें एक शुद्ध हिंदी और एक थोड़ा सा भोजपुरी टच वाला या बनारस की भाषा हमने इस्तेमाल की. उसके बाद फिर शरद कटारिया वो सो ओपन टू द आइडिया कि अच्छा मोह मोह के धागे और टोह टोह ना लागे. या फिर दोबारा मैंने शरद के साथ सुई धागा में काम किया तो तेरा चाव लागा जैसे कोई घाव लागा. अब चाव और घाव जो है पहली बार अगर कोई भी जनरली बॉम्बे में जो पले बड़े हैं वो बोलेंगे कि ये चाव और घाव हमको दोनों ही नहीं पता क्या है. कौन सी चीज अगर बता भी दूं मैं उसमें कि अच्छा एक जख्म है और एक शौक है तो इसमें फिर वो फिर भी नहीं बता पाएंगे कि चाव जख्म है कि शौक है और घाव जख्म है कि शौक है. वो बड़ा मुश्किल होगा. But Sharat Kataria was so open to using that kind of language which we grew up with. तो वो मौका मुझे अच्छे लोगों के साथ मिलता रहा है. वो अभिषेक चौबे के साथ मिलता रहा है जब सोन चिड़िया में अभिषेक चौबे और विशाल भारद्वाज के साथ काम किया. सो अगेन इट्स डिफिकल्ट. आप सही कह रहे हैं कि मुश्किल है वो उस भाषा को लेकर सब जगह किसी भी फिल्म में चले जाना. तो वो भी एक कारण है कि मैं लिमिटेड काम करता हूँ. साल में एक एल्बम मेरा आता है, कभी 2 आ जाते हैं मैक्सिमम. उससे ज्यादा मैं काम नहीं करता हूँ. मैं उन्हीं लोगों के साथ काम करना पसंद करता हूँ जहाँ पे एक तो विचार मिले और उसके साथ साथ अपना भाषा मिले. मतलब मेरी भाषा उनको समझ आती है, उनकी भाषा मुझे समझ आती है, फिल्म की भी वही भाषा हो तो वो उसमें बड़ा मजा आता है. तो देन भाषा की बात हो रही है तो देन फॉलो करूँ ट्विटर पे टू अंदर का कुत्ता आज कडिए. Very curious to know what was the inspiration behind this line, अंदर का कुत्ता. जी, तो ये जो है ये फिल्म क्योंकि उड़ता पंजाब के लिए लिखा था ये, तो उड़ता पंजाब में वो उसका नाम टॉमी है, शाहिद कपूर के कैरेक्टर का. तो वहां से आइडिया आया कि वो टॉमी है और वो द वे ही बिहेव तो बहुत एग्रेसिव है और बहुत ज्यादा कई जगहों पे आउट ऑफ कंट्रोल है. तो वो जो एक मुहावरा जैसा है कि कुत्ते जैसा क्या बिहेव कर रहा है, तो वो मैंने उसको वहां से निकाला. तो दोनों में ही ये अंदर द कुत्ता आज कडिए और वो जो फॉलो करूं ट्विटर पे आपने बोला, वो दोनों फिल्म की जो भाषा थी और फिल्म के जो किरदार थे उनसे निकले हुए गाने हैं. कि मुझे फिल्म का ब्रीफ बहुत अच्छे से दिया गया. डायरेक्टर ने बोला कि ये जो कैरेक्टर है इसके लिए एकदम फिट बैठना चाहिए, बाकी आप भाषा की सारी वो जो प्योरिटी है उसको छोड़ दें और आप अपने कैरेक्टर के हिसाब से आप वो करें. I was watching this interview of Salim Saab, and Salim Khan said back then when we started saying no, they said that ना बोलने के पैसे मिलते थे. क्या आज भी that works? हाँ, always works I think. क्योंकि basically I think what he meant or how I understand it is basically आप if you do selective work, आप गिने चुने काम करें, वो काम करें जिसमें हाई इम्पैक्ट हो, वो काम करें जिसमें आप पूरे दिल से कर सकते हो, तो अपने आप वो काम भी बढ़िया होता है. पीपल रिस्पेक्ट यू मोर बिकॉज यू आर डेफिनेटली यू आर अप्लाइंग योर ब्रेन. ये नहीं है कि जो भी काम आ रहा है वो आप कर रहे हैं और फिर देन दैट बिकम्स थोड़ा बर्नआउट भी जल्दी हो जाता है. तो मैं तो ये बिल्कुल मानता हूँ कि जितना कम काम करें और वो उतना अच्छा भी होता है और एक टाइम पे एक काम करें तो ज्यादा अच्छा. Because the way because you just said कि राइटर्स की वैल्यू नहीं करते हैं इंडस्ट्री में लोग. क्या आज भी ऐसा होता है कि आप जब ना बोलें, especially when you're established like yourself who has given blockbuster film, when you say no, do people care more and offer more money? ऑफर मोर मनी यस, बट आई थिंक जब मैं ना बोल देता हूँ तो फिर वो ना ही होता है. वो पैसे की वजह से तो मैंने आज तक कोई काम नहीं किया है. क्योंकि ये है बस. हाँ, ना बोलने से वैल्यू इस तरह से बढ़ती है कि आप कोई अच्छा काम करते हैं और इवेंचुअली वो जब बाहर आता है तो उसकी इज्जत होती है एंड देन योर मार्केट प्राइस आल्सो गोज अप. बट हाँ, उस तरह से. लेकिन अगर जो आप राइटर्स की इज्जत की बात कर रहे हैं तो वो
आई थिंक दैट्स एन ऑनगोइंग स्ट्रगल। वो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कोई वो जो है ना वो सुबह कभी तो आएगी जो कहा गया है, वो नहीं आएगी। मुझे नहीं लगता सुबह कभी आएगी, बट हम सबको इनफ अवेयर होना पड़ेगा कि सुबह तो नहीं आएगी। अपनी अपनी टॉर्चें जला लो और मोमबत्तियां ले लो हाथ में और ये लड़ते रहो, क्योंकि ये रात ही रहेगी, वो तो पक्का है। बट वी हैव टू मेक इट हैप्पी नाइट, फ्रूटफुल नाइट फॉर ऑल द राइटर्स। तो स्ट्रगल जारी रहेगा। कभी भी मुझे नहीं लगता है कि ऐसा होगा कि सारी कॉर्पोरेशंस अचानक से बोलेंगे कि ठीक है आज से तुम्हारी बहुत इज्जत है, तुम जो बोलोगे वो सही है। वो होगा नहीं। तो आई थिंक हम लोग लड़ते रहेंगे। लड़ते की बात हो रही है, देयर इज अ राइटर स्ट्राइक गोइंग ऑन इन द वेस्ट। जी, they are demanding for better payment for writers, mandatory writer room, better residuals, and need to regulate AI. Do writers here in India also get residuals from streaming giants? नहीं नहीं मिलते नहीं। तो ये इस मामले में अमेरिका हमसे कुछ 40-50 साल आगे है। वहां पे टीवी से रेजिडुअल्स 1970 से 1960 से मिलने शुरू हो गए थे, और फिर उसके बाद स्ट्रीमिंग सर्विसेज आई तो उनसे भी मिल रहे हैं। अभी वो उसका थोड़ा सा रीनिगोशिएट, क्योंकि इससे 10 साल पहले जो स्ट्राइक हुई थी उसमें स्ट्रीमिंग के रेजिडुअल्स की बात हुई थी, जिसमें फिर देना शुरू किया था। जैसे कि कोई शो खास करके जो दोबारा आ रहा है स्ट्रीमिंग पे, जो टीवी पे आ चुका था, साइनफील्ड या फ्रेंड्स, अब उसके रेजिडुअल्स नेटफ्लिक्स से या जिस भी चैनल पे वो आ रहा है उससे मिलते हैं उनको, और ये 40-50 साल से वहाँ टीवी पे मिल रहे हैं। हिंदुस्तान में आज तक नहीं मिले हैं। वी आर, आई मीन दैट इज अनदर स्ट्रगल वी हैव टू टेक अप। और आई होप स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन और सारे जो फिल्म राइटर्स हैं, स्क्रीन राइटर्स हैं, मिलकर ये एक आवाज उठाएं, क्योंकि रेजिडुअल्स बहुत जरूरी है राइटर्स के लिए, क्योंकि उसका एक्सप्लॉयटेशन तो एंडलेस हो रहा है। एक जमाने में दूरदर्शन पे एक शो आता था, 13 एपिसोड आते थे और वो खत्म हो जाता था, और वो 13 एपिसोड का ठीक है, आपने उनको फीस दे दी है राइटर को। आज तो वो जो भी शो आ रहा है वो परमानेंट है, और वो हमेशा उनकी स्ट्रीमिंग पे रहेगा, और आज से 50 साल बाद भी वो उनको पैसे दिलाएगा, क्योंकि 50 साल बाद भी लोग देखेंगे। हम जैसे देख रहे हैं 1950 की फिल्में या टीवी शो या म्यूजिक सुन रहे हैं ना आज भी। तो वो रेजिडुअल मिलना बहुत जरूरी है, और स्ट्रीमिंग सर्विसेज आर द फ्यूचर। इनफैक्ट दे आर हियर, एज इन दे आर नॉट इवन द फ्यूचर, दे आर द प्रेजेंट। And we definitely should get the residuals. I hope there is a collective effort very soon. I'll also try to make it happen, and I think all the writers would really, I mean, we want residuals from the streaming services. Your directorial debut, Kiss, was screened at many prestigious film festivals. And the film is about this young filmmaker who's waiting for his sci-fi drama to be certified by this conservative men at the censor board. You know, it was this, and the conflict arises when they find the duration of the kissing scene is beyond a specific limit of the rules set by the censor board. Please tell us more about the film and the experience of directing it. You're also directing a feature film now, I know. जी, मेरी फीचर फिल्म भी तैयार हो गई है, और अभी उसका वर्ल्ड प्रीमियर भी हुआ रॉटरडैम फिल्म फेस्टिवल में। बहुत दुनिया के जो बहुत नामी गिरामी फिल्म फेस्टिवल्स में से एक है, और उसमें हमारी ऑल इंडिया रैंक, जी ऑल इंडिया रैंक की वहाँ क्लोजिंग फिल्म थी हमारी फिल्म फेस्टिवल की, विच वाज अ ग्रेट ऑनर for this was the first ever Indian film actually in the 52-year history of Rotterdam to be the closing film of the festival. तो बहुत बड़ा हमारे लिए मौका था, बहुत अच्छा रहा। किस मैंने उससे पहले बनाई थी, शॉर्ट फिल्म बनाई थी जो पिछले साल बनाई थी, और काफी फेस्टिवल्स में गई वो, हमको काफी अच्छा रिस्पांस मिला, 3 फेस्टिवल्स में अवार्ड भी मिले हैं। सो किस वाज समथिंग व्हिच केम फ्रॉम अ वेरी पर्सनल स्पेस। मुझे सेंसरशिप से बहुत ज्यादा दिक्कत है, और मैं काफी उसके खिलाफ आवाज उठाता रहा हूँ, फिर अपनी कॉमेडी के जरिए भी। पर मुझे लगा कि ये एक मौका है जहाँ पे मैं कहानी भी कह सकता हूँ सेंसरशिप को लेकर और सेंसर बोर्ड को लेकर। तो वो कहानी ऐसे निकली कि एक मैंने अखबार में कहीं खबर पढ़ी, मैं भूल गया कौन सी फिल्म का था, बट देयर वाज अ फिल्म, हिंदी फिल्म, which was sent back by censor saying कि इसमें जो किसिंग सीन है इसमें वो 22 सेकंड है, आप इसको काट के 16 सेकंड कर दीजिए। तो ये नहीं उन्होंने कहा कि पूरा हटाए, उन्होंने कहा 22 का 16 कर दीजिए। तो मैं सोच रहा था कि ये 16 नंबर कहाँ से आया उनके पास, ये कहाँ उन्होंने किस तरह की रिसर्च की होगी कि ये 16 सेकंड पे आ गए।
तो वो कोर था आइडिया का कि जहाँ पे एक फिल्म मेकर और उनके बीच झगड़ा हो रहा है, जहाँ पे वो कह रहे हैं कि किसिंग सीन जो आपकी जो टाइम लिमिट हमने जो बनाई हुई है उससे लंबा है, और वहां पे फिर एक अचानक से वो डिस्कशन में वो फिल्म एक साईफाई जैसा एक लीप लेती है, क्योंकि वो जो फिल्म देख रहे हैं वो भी एक साईफाई फिल्म है, और उसी फिल्म जैसा कुछ यहाँ होना शुरू हो जाता है और एक साईफाई एलिमेंट खुल जाता है, जिसमें कि वो किसिंग सीन के डिबेट से शुरू होती है बात, लेकिन वो कहीं और उनकी साइकोलॉजी में चली जाती है, और हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये लोग ऐसे क्यों हैं, ये जो सेंसर बोर्ड के दिमाग में जो नंबर आया है ये कहाँ से आया है। तो मेरी कोशिश वही थी। तो ये साईफाई, ड्रामा, कॉमेडी सब कुछ है इसमें, और साइकोलॉजिकल फिल्म है, छोटी सी 15 मिनट की फिल्म है, और बहुत मजा आया बनाने में। पहली फिल्म थी मेरे जीवन की एज अ डायरेक्टर, और आदर्श गौरव आई गॉट टू वर्क विद, ही इज द मेन लीड। स्वानंद किरकिरे हैं, शुभ्रा ज्योति भारत, और बहुत बहुत शानदार एक्टर। और हम शॉर्ट फिल्म, जैसा कि आप जानते होंगे कि शॉर्ट फिल्म बनाने के लिए बजट नहीं होता है, क्योंकि उसकी कोई रेवेन्यू मॉडल है नहीं। तो यारी दोस्ती में बनाई हुई फिल्में, बहुत लोगों से मदद ली मैंने, जिन्होंने फिल्म का साउंड किया है, संजय मौर्य, ऑलविन रेको, उन्होंने भी ऑलमोस्ट फ्री में बस यारी दोस्ती में को प्रोड्यूसर बन के उन्होंने किया। तो इस तरह से काफी लोगों का सहयोग रहा। न्यूटन सिनेमा मेरे प्रोड्यूसर, और ऑड एंड इवन ये 2 प्रोड्यूसर थे। तो अच्छा लगा, और उम्मीद है कि इस साल हम वो फिल्म सबके लिए, पूरी दुनिया के लिए, मतलब कहीं भी किसी ऑनलाइन कहीं रिलीज डालेंगे। जी, Varun Grover, more power to you. Thank you so much for your time and best of luck. थैंक यू।